Hello class, welcome back. Class, in the last classes we were doing maxima and minima. Topic of application of derivative. This is a long topic, no doubt. Class, in the last three classes we have studied a lot about maxima and minima. To test, we have studied first derivative and second derivative test, right? And also we have done so many questions based on all these tests. Class, today in today's class. We will start question from exercise 6.5, and from question number 6 I am going to start. Before what the given question there, also I have done in the video. You copy down all the question from the video, right, and from the previous video, and from here also I will send. Now I'm going to solve all the question here. I'm going to explain all this question from this exercise, and after this I will start the question from miscellaneous. But always one thing keep in mind, as you know, you're in class 12th. Always go from the always follow the revised syllabus of CBSE of class 12, right? So class, I take one problem. I just not would like to waste my time on. So I like to start the question from here. The question number 6 is, which state find the maximum profit of that the company can make if the profit function is given by. This is the profit function is given 41 minus 72x minus 18x square. Plus one thing more, you also have to make copy, right? The your internal marks based on your copy work, right? And also we will do some activity afterward we will do, but also you have to make copy. So what the work I am doing here, and for the PDF also I will send you, so you complete the work as well with class. Okay, whatever the work we are doing here in the video, that's you doing copy randomly. Weekly I will ask you, okay, then to whom child if I call, then that child has to send me the images of complete work in your note copy. So class, the px is 41 minus 72x minus 18x square. We have to find the maximum value. क्लास थोड़ा सा हम रिकैप दे दें आपको. जो हमारा मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट था वो ये था, जो हम उसको फॉलो करेंगे. फर्दर जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे. तो हम क्लास हमारा स्टेप 1 क्या था, y is equal to fx. यहाँ में गिवन था क्लियर. स्टेप 1 is find y dash. Okay, find y dash, and after this equate find y dash, and y dash is equal to 0. Okay, y dash को आपको 0 से इक्वेट करना है. Then now find x, x1, x2, xn. आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, एक या दो या मोर देन वन आप पॉइंट्स मिल सकते हैं. पॉइंट सेकंड ये है, नाउ फाइंड y डबल डैश आप फाइंड करिए. आफ्टर दिस यू पुट दैट पॉइंट दैट x1, x2, x3 इन y डबल डैश. ओके, तो अब अगर ऑन पुटिंग द वैल्यू इज x1, अगर वैल्यू इसकी आ रही है पॉजिटिव, देन x1 इज कॉल्ड अ लोकल मिनिमा, and x1 is called a local minima. और अगर आप y डबल डैश में प्लेस कर रहे हैं x2 फॉर एग्जांपल, और आपको उसकी वैल्यू मिल रही नेगेटिव, देन x2 इज कॉल्ड अ लोकल मैक्सिमा. ठीक है, ये आपको लोकल मैक्सिमा हो गया. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, सो यू गो थ्रू द y इज इक्वल टू fx. आप अगर x1 को यहां प्लेस करते हैं y इज इक्वल fx में, तो यहां पर आपको मिलेगी मिनिमम वैल्यू, राइट, बिकॉज़ x1 इज लोकल मिनिमा. And if you put x2 in y is equal to fx, then you will get maximum value, and because x2 is called a local maximum. Clear? अगर more than points आ रहे हैं, for example आपको एक और क्लॉज है कि अगर किसी भी फंक्शन में आपको दो लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, तो वहां पर दो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, दोनों इक्वल होंगे ऑब्वियसली. ठीक है, तो क्लास ये थोड़ा सा रिकैप था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. इसके बाद आप क्वेश्चन पर आ जाइए, सेम प्रोसेस यहाँ पर यूज करेंगे. ठीक है, आप चाहें तो उसको नोट कॉपी में नोट कर लीजिए. ये आपका विषय, आपका है कि आप इसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. आपने जैसे कि y इक्वल टू fx, ये आपका प्रॉफिट फंक्शन है, इसको आपने f डैश x किया क्लास पहले. f डैश x करेंगे तो आपका आएगा -72 -36x. क्लियर? नाउ f डैश is equal to 0,
-72 -36 x इज इक्वल टू 0 और आपको यहां से x मिलेगा x इज -2 ठीक है x -2 मिल रहा है। नाउ फाइंड f डबल डैश आप p डबल डैश x फाइंड करिए p डबल डैश x आपने फाइंड किया तो क्या आएगा -36 आएगा ठीक है। तो अब आप देखिए अब आप ऐड x इज इक्वल टू -2 p डबल डैश इज व्हाट इट इज कमिंग नेगेटिव तो x -2 क्या हो गया x -2 आपका हो गया लोकल मैक्सिमम ठीक है लोकल मैक्सिमम हो गया। अब जब इस -2 को आप y क्या है px जब आप यहां प्लेस करेंगे तो आपको मिल जाएगी मैक्सिमम प्रॉफिट ठीक है। तो ऐड x इज इक्वल टू -2 p डबल डैश x इज नेगेटिव आ रहा है बिकॉज़ यहां पर तो x है ही नहीं यहां पर नेगेटिव ही होगा। So what is this? x equal to -2 is local maximum. ये आपको हो गया local maximum क्लियर। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है क्लास। इसके बाद आप क्वेश्चन को क्या कर लीजिए तो जो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा मींस मैक्सिमम प्रॉफिट तो जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इट इज p at -2 आप p में जब -2 प्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम प्रॉफिट ठीक है। तो आपको ये हो जाएगा 41 -72 minus and 80 minus 2 whole square 41 minus 144 प्लस हो गया माइनस प्लस एंड minus 18 into 4 41 plus 144 minus 36 and 72 ठीक है। ऐड करके माइनस के लिए यहाँ 72 आएगा 41 plus 72 आपका आ जाएगा आंसर 311 113 what is this this is the final answer and it is the maximum profit that company can make with this profit function ठीक है क्लास। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया ये रफ फर्क है इसको आप एरेस्ट कर दीजिए ओके। नाउ योर क्वेश्चन इज ओवर क्लियर। Plus the next problem, find both the maximum and minimum value of fx on interval 0,3. Right? Class में एक बात और शेयर करना चाहता हूँ. There are so many students so far whom facing very much problem in practicing in mathematics. तो class actually आप हमारे वीडियोस आपके पास आएंगे मैं आपको स्टडी कराऊंगा मैथमेटिक्स क्लास। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कोई ऐसा इशू आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए और व्हाट्सएप करके मुझसे प्रॉब्लम आप पूछिए। आप कोई भी क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में बुक में या कोई भी कहीं पर भी आपको इशू आ रहा है तो मुझसे आप पूछें। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है असाइनमेंट करने में क्वेश्चन करने में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो जस्ट यू शेयर टू मी ठीक है। यू हैव माय नंबर यू कॉल मी अगर कोई इशू है तो देखो क्लास ये एक आपका ये क्वेश्चन है और आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। क्लास इट दिस क्वेश्चन हैज लाइक एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम आपको फाइंड करना है। तो हमारा प्रोसेस वही है सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है देयर इज नो चीज टू डू ठीक है। नाउ फाइंड सॉल्यूशन देखिए और सर इसमें एक थोड़ी नई चीज है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं। आप पहले यहां पर f dash x निकालिए 12x cube minus 24x square plus 24x minus 48 clear। now f dash x is equal to 0 इक्वेशन तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगा 12x cube minus 24x square plus 24x minus 48 is equal to 0। यहाँ से आप 12 कॉमन ले लीजिए x cube minus 2x square 2x and 4 is equal to 0 क्लियर। आपको ऐसे x फाइंड करना है तो ये तो 0.0 हो जाएगा। यहाँ से आपको x निकालना है यहाँ से आप पेयरिंग करिए पेयरिंग आपका हो गया x स्क्वायर minus 2x स्क्वायर plus 2x minus 4 is equal to 0 and x square taking common x minus 2 taking common x minus 2 is equal to 0 क्लियर। यहाँ से क्या मिलेंगे आपको from here we will get the critical value हमको यहाँ से मिलेगा critical values मिलेंगे ठीक है ना। we will find the critical value by x is equal to 0 से हमको मिलेगा critical value। तो क्लास यहाँ पर रूट्स क्या आ रहे हैं आपको x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 is equal to 0 क्लियर। आप दोनों को 0 से इक्वेट करिए देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है x स्क्वायर प्लस 2 is equal to 0
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, राइट। क्लास यहां से आपको मिलेगा वैल्यू, आपको इमेजिनरी नहीं मिलेगा, राइट। तो यहां से आपका x जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो आप इसको रहने देंगे, राइट। तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो यहां से नहीं मिलेगा, बल्कि इस ब्रैकेट से मिलेगा x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, राइट। तो इट इज दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू, ये आपको मिल गया क्रिटिकल पॉइंट। जहां से फंक्शन आपका टर्न करेगा वो आपका x इज इक्वल टू मिल गया, ठीक है। अब सारे वर्किंग इस पे करना है। अब हमारे पास पॉइंट क्या आ गए, अब जो हम y डैश फाइंड करेंगे उसमें क्लास हम जो है वो क्या बोलते हैं 2 लेंगे, 0 लेंगे एंड 3 लेंगे। 3 पॉइंट से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लास क्लास देखिए, हियर वी फाइंड टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू, और ये जो 2 है ये x इज इक्वल टू 2 एंड 2 बिलोंग्स टू 0,3, क्लियर। अब क्लास हमारे पास fx गिवन है, ये fx है। अब हम क्या करेंगे, हम पॉइंट लेंगे। देखिए जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया वो 2 हो गया, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये इमेजिनरी है, तो ये रियल पॉइंट मैंने ले लिया, ये 0,3 से बिलोंग कर रहा है। अब हम एट x इज इक्वल टू इवन हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे f0 एंड f2 एंड f3, और हम कंपेयर करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ओके क्लास, देखिए अब इस पर एक हमारे को डिस्कशन होगा, वो भी मैं आपसे करूंगा, ठीक है। बट इसके पहले मैं वो कर लूं क्वेश्चन को। पहले आप 0 प्लेस करिए, यहां पे fx दिख रहा है आपको 3x की पावर 4 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, राइट। तो हम वैल्यू प्लेस करते हैं इसमें -8 0 क्यूब प्लस 12 0 स्क्वायर 48 0 प्लस 25, clear, and finally the value coming 25, right। f0 value आ रही 25, ठीक है। now find f2, 3 2 to the power 4 minus 8 2 of square and 12 2 of square minus 48 into 2 plus 25, clear। अच्छा, तो 2 पर वैल्यू क्या आ रही है, 2 पर वैल्यू आप इसको इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट -39 वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। आप इसको इवैल्यूएट करिए। क्लास ये सब डिस्कशन मैं यहाँ पर अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी कैलकुलेटिव वर्क है, टाइम टेकन है, खाली कैलकुलेशन करना है, आप सामने कैलकुलेशन है, आप कर भी सकते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, और जो मैंने आपको नहीं बताया इसमें खाली बस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, एडिशन करना है। नाउ फाइंड f3 करिए आप, 3 to the power 4 minus 8 3 cube 12 3 square minus 48 into 3 plus 25, right। and now the final value coming is 60, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू इज 25 at x is equal to 0 and the minimum value is -39 at x is equal to 2, ठीक है। क्लास आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, मैंने यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो अप्लाई नहीं किया। क्लास अगर आप यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप करेंगे तो खाली आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। देखिए सेकंड यहाँ पर देखिए दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जब आप करेंगे तब उसमें जो आप वैल्यू प्लेस करेंगे, आप उन नंबर को उसमें प्लेस करेंगे जो वैल्यू आपकी y डैश से आती है, ठीक है ना। इसके बाद अभी मैं आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने सेकंड डेरिवेटिव से इसको क्यों नहीं किया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूं। क्लास देखिए, अब सपोज करें अगर इसको हम सेकंड टेस्ट से करते हैं, डेरिवेटिव से करते हैं, तो क्या आएगा आंसर। देखिए आपको ये क्या आ रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है f सेकंड डैश मिल रहा है। पहले आप फाइंड करिए f डबल डैश, ऐसे कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसे आप करेंगे तो क्या आएगा, आपको मिलेगा 36x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 24, ठीक है। ये आपको मिल रहा है f डबल डैश x। क्लास देखिए f से आप खाली एक ही वैल्यू मिल रही है x2। अब ये वैल्यू या तो आपको लोकल मैक्सिमम देगी या तो आपको लोकल मिनिमम देगी, मिनिमम देगी, ठीक है ना। वहां पर अब इसके अंदर आप इसको आप नहीं यूज कर सकते, नहीं 0,3 को आप यूज नहीं करेंगे बिकॉज़ ये फंक्शन एक लिमिट के अंदर है, 0,3 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ इसको चेक करने के लिए, नेगेटिव और पॉजिटिव फाइंड करने के लिए हमें खाली वो वैल्यू फाइंड करना है जो f सिंगल डैश से फाइंड आउट होगी,
ये दोनों में डिफरेंस है। बात क्लियर करिएगा, पहले का डिस्कशन और आपका डिस्कशन। अब इसमें अगर हम अब डबल डैश में हम 2 प्लेस करते हैं तो क्या वैल्यू आती है? तो ऑब्वियसली वैल्यू आएगी पॉजिटिव। इवैल्यूएट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, -48 इंटू 2 प्लस 24, ठीक है। ये आपका हो गया 436 7144। ये आपका हो गया 144 माइनस इट इज 96 प्लस 24 एंड हियर द वैल्यू कमिंग पॉजिटिव। ये वैल्यू आपकी आ रही प्लस, आ रही वैल्यू पर प्लस। तो 2 क्या होगा? एंड x2 आप बोलेंगे ये आपका लोकल मैक्सिमा हो गया, या बोलेंगे इट इज सॉरी लोकल मिनिमा, क्या बोलेंगे लोकल मिनिमा। अब आपको जो मिनिमम वैल्यू मिल रही थी पहले वो 2 पर मिल रही थी, वो कितनी मिल रही थी? -39 मिल रही थी। अब अगर आप इस 2 को f में प्लेस करेंगे देन यू विल गेट -39 वैल्यू मिल रही है। तो यहां से खाली आपको लोकल मिनिमम मिलेगा और मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम आपको नहीं मिल पाएगी, राइट। तभी से मैंने उस वाले टेस्ट को यहां पर किया। तो ये डिफरेंस क्लास आपको पता होना चाहिए, ये आपकी नॉलेज में काउंट होगा। ओके क्लास, क्लियर हो गया? तो दोनों में क्या कंफ्यूजन है, क्या डिफरेंस है, ये मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। Class, question number 8, at what point we have to find the point, right, in the interval 0 to 2 pi, 0 से 360 के बीच आपको पॉइंट फाइंड करना है जहां पर y is equal sin 2x में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मींस वी हैव टू फाइंड द लोकल मैक्सिमा बिटवीन 0 to 2 pi। बट यहां पर क्लास क्या गिवन है? यहां पर इंटरवल गिवन है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इन दो पॉइंट्स को लेना पड़ेगा। तो हमारा क्या रहेगा भाई, जो भी जस्ट मैंने पहले वाला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट फाइंड y डैश को आप 0 से इक्वेट करेंगे और जो से पॉइंट आएंगे वो, और जो ये 2 पॉइंट, ये 0 इंटू 2 पाई, इन सारे पॉइंट पर हम y फाइंड करेंगे। y जो मैक्सिमम होगा वो लोकल मैक्सिमम हो जाएगा जिन पॉइंट पर, और जिन पॉइंट पर आपको मिलेगा मिनिमम, दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज लोकल मिनिमम, ठीक है। तो समझ में आ गया प्रोसेस। अब स्टार्ट करते हैं। y is equal to sin 2x, right, and y dash 2 cos 2x into 2, 2x करेंगे तो आएगा। now y dash is equal to 0, 2 cos 2x is equal to 0, cos 2x is equal to 0। तो cos 2x कहां 0 होता है? 2n plus 1 pi by 2 पे होता है। तो 2x आपका आ जाएगा 2n plus 1 pi by 2, राइट। अब यहाँ पर n की हम वो वैल्यू, इंटीजर्स की हम यहाँ पर वो वैल्यू लेंगे x की जो 0 से 2 pi के बीच में लाई करेंगे, राइट। तो पहले आप लीजिए n0, फर्स्ट एक n0, फिर n1 n2 n3 से आप वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं ले रहा हूँ n0 से क्या मिलेगा? 2x और pi by 2, implying that x is equal to pi by 4. This is the first value. Clear? Now take n is equal to n0 class. Now take n is equal to 1. n1 लेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 2x आपका 3 आएगा, 3 pi by 2, right? x is 3 pi by 4, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये वो वैल्यू लेना जो वैल्यू 0 से 2 pi के बीच में लाई कर रही है। n is equal to 2, 2x is equal to 2 to the 4 plus 1, 5 pi by 2, and this is x is 5 pi by 4, ठीक है। देखिए 45 लाई कर रही है, it is 45 लाई कर रही है, yes, it is 135 लाई कर रही है, yes, and 5 into 45, 45 5 जा, इसमें 90 जोड़िए, तो 135 plus 95, 12 1, 2 to 5, this is 2 to 5, it is also being lying, ये भी लाई कर रही है 360 के बीच में। हम और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आप यहां पर आ जाइए, n is equal to 3, क्या होगा 3 पे? 3 2 6, 6 plus 1 7, तो आपको 2x मिलेगा 7 pi by 2, implying that x is equal to 7 pi by 4, okay, 7 pi by 4 आ रहा है। 45 into 7, 45 into 7 भी लाई करेगा, 2 to 5 plus 90, 2 to 5 plus 90, 5 11 3 315 लाई कर रहा है, 315 भी ये भी लाई करेगा, इस पर भी टिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप फाइंड करिए n is equal to 4, n 4 पे क्या आएगा? 2x 9 pi by 2, ठीक है। x क्या मिला है? x मिलेगा 9 pi by
4 315 प्लस 90 ये आपका मोर देन 360 हो जाएगा, ये लाई नहीं करेगा, राइट। तो आप इसको नहीं लेंगे। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए? क्रिटिकल पॉइंट्स आपके हो गए, आपको हो गया x इज इक्वल टू पाई बाय 4, x इज इक्वल टू पाई बाय 4 हो गया, मैं आप फिर से नहीं लिख रहा हूं, पाई बाय 4 हो गया, 3 पाई बाय 4 हो गया, 5 पाई बाय 4 हो गया एंड 7 पाई बाय 4 हो गया, राइट। इसको हम कर देंगे क्रॉस, क्लियर। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। अच्छा ठीक है, अब मैं इसको रेस करता हूं, यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। आप अगर आपको आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्लास क्या करना है, नेक्स्ट अब आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। इन जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें आपको 0 2 y भी लेना है, तो आपको y चेक करना है कितने 1 2 3 4 एंड 2 6 पॉइंट पर आपको y चेक करना है, ओके क्लास। तो अब इसके बाद यहां पर देखिए, ये नेक्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ऐसे आप करिएगा, ठीक है। अब यहां पर क्लास क्या होगा, f0 y इज इक्वल टू साइन 2x है, तो आपको हो जाएगा साइन 0 मीन 0। नेक्स्ट इज f पाई बाय 4, तो आपको हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाय 4 मीन साइन 90, साइन 90 इज 1, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड 3 पाई बाय 4, साइन 3 इंटू पाई बाय 4, देखिए साइन 2x है ना, y इज इक्वल टू साइन 2x, तो यहां पर आप 3 पाई बाय 4 हो गया, यहां पर हो जाएगा साइन 3 पाई बाय 2, ठीक है ना। साइन 270, साइन 270 पे क्या होगा, यहां वैल्यू इसकी -1 होगी, 90 प्लस 180 प्लस 90, 180 प्लस माइनस साइन 90, द वैल्यू इज -1, ठीक है ना। वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। नेक्स्ट आपने देखा f इज 3 के बाद इसका नंबर आ रहा है 5 पाई बाय 4, 5 आ रही है, 5 पाई बाय 4, या आपका हो गया साइन 2 इंटू साइन पाई बाय 4 साइन 5 पाई बाय 2, ठीक है। इसको आप ब्रेक करिए, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई प्लस 41 पाई बाय 2, ठीक है, 415, ये हो गया 90, तो ये आपका हो जाएगा प्लस साइन पाई बाय 2, दिस इज 1, ठीक है। नेक्स्ट आप आइए 7 पाई बाय 4, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन, क्योंकि पॉइंट ज्यादा आ गए ना, इसलिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस खाली पॉइंट ज्यादा आ गए, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो गया। 2 इंटू 7 पाई बाय 4 साइन 7 पाई बाय 2, ठीक है। इसको इवैल्यूएट करिए क्लास, तो ये आपको हो जाएगा साइन 4 पाई प्लस 4 पाई, माइनस भी ले सकते हैं एंड 3 लिख लीजिए आप, 3 पाई या 4 कर लीजिए, 4 पाई माइनस पाई बाय 2, ठीक है। 4 to the 8 minus 1 7 पाई बाय 2, ये आपको हो जाएगा साइन माइनस पाई बाय 2, इट इज माइनस साइन पाई बाय 2 एंड द वैल्यू इज -1, क्लियर। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आ रही है, तो हम पहले उनको यहां पर 1 आ रही है, 1 है, 0 -1 है, तो 1 है मैक्सिमम, कहां पर आ रहा है 1, एक तो आपका आ रहा है 45 पर, तो अब आपने इसे क्रॉस कर लिया, आपने इसे कर लिया सर्किल, और एक 1 आपका यहां पर आ रहा है, ठीक है। यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर -1 है, प्लस ये -1 है, यहां से देखिएगा इट इज 1 और इसकी वैल्यू आपको -1 आ रही है, तो 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर वैल्यू 1 आ रही है, तो आप इसके बाद यहां पर लिख लीजिए एंड x is equal to pi by 4 and 5 pi by 4, the function attains the maximum value, right, between 0 to 2 pi। तो ये हमारे आंसर्स हैं, इन पॉइंट पर आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है एंड द मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू ये मिल रही है, द मैक्सिमम वैल्यू इज 1, क्लियर। दिस इज द फाइनल आंसर क्लास, नोट डाउन दिस वन क्लास, देयर आर 3 स्टेप पे होगा, फर्स्ट स्टेप पे ये होगा, इसके बाद आप यहां से करिएगा, ठीक है, यहां से यहां तक, देन आफ्टर दिस यहां से आप यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, देन आप कम हियर, फाइनल आंसर आपका यहां पर है।